Hello, dear friends. Welcome back to Showman Nath's YouTube channel. Today, we are going to discuss about the latest notification which has been available in Macau website, and it is talking about internship guidelines. And we are basically going to discuss about what it is and what are the guidelines and how it is talking about and how these guidelines need to be followed. So they firstly sent this letter to the all, notice this to the all director, principals, head of the department, as well as faculty members and the students, that the competent authority of the university, after discussion, so with the experts of the board of studies, decide to encourage the students to take up the technology oriented internship projects as suggested by the experts, and this would help the students to continue the internship project during lockdown period. So let's move on now towards the notice. So we can have a look. This is the notice which was given on 20th of April 2040. So this is by Shivashish Datta, Controller of Examinations, and this is, let me zoom it a little bit later, that is a maximum one. Okay, so you can have a look on this. So this is what it is all about, and there are all there is a board of studies at time mentioned and in this particular list also. So let's move into further, because there are 29 papers, 29 pages, and it's not possible for me to annex all those pages over here, but I can tell you that the gist of this particular thing is like the board of studies for engineering, and specifically for thermal power plant, as well as hydroelectric power plant, as well as paper. This is something which paper mill, then cement plant, then solar power plant, then electrical substations, process control of an industry, electric locomotive, then motors and controller for electric car, as well as the last point discussed about the energy efficient building. So this list is there, what they're talking about is exhaustive and not only indicative. That means mentors may select topic based on their expertise also, because you are having a mentor under which you work. So the main objectives of this particular project is to learn to apply the technical knowledge. Secondly, to gain experience in writing technical reports and projects, so that you can have, as well as to learn engineers responsibility and ethics, as well as to familiarize yourself with the various materials process, etc., and to understand the social, economic and administrative considerations that influence working environment of industrial organizations, and lastly, but not the least, to understand the psychology of the workers and their habits, attitudes, and approaches to the problem solving. So general guideline basically for the students which has been given in that particular part is like the block diagram representation of the plant or the system, as well as the function of each block and plant system, as well as the detailed electrical equipments of the plant or the system are to be identified with specifications and operating principles, like what kind of it is. You need to talk about the design, layout, etc., and as well as the locational factors is also related with this, like what are the factors you need to choose, selecting the factory or the plant, it depends, as well as different diagnostic techniques in the event of fault of different equipments, as well as preventive maintenance techniques of different electrical equipments. So there are
the overview of the plant can be obtained from materials as well as the daily activities in the digital platform, how you can do it, because this is the era of digitization as well as means computer controlled machines, or what we call in CNCs. Those things is really important for you to learn. And lastly, a report mentioning all the points which were submitted in maybe in a group, and group will deliver a seminar in the digital platform to the with the mentor. So the main thing is your these objectives what I mentioned over here, यहाँ पे जितने सारे objectives mention किए वो आपको टेक्निकल राइटिंग हो, प्लांट डिज़ाइनिंग हो, लेआउट हो, उसका सारा जो इक्विपमेंट मेंटेनेंस हो, सो ये सभी फैक्टर्स आपको कंसीडर करना पड़ेगा। जो वर्कर्स है उसका जो अप्रोच है, ये कैसे डिजिटाइज प्लेटफॉर्म में आप कैसे आज काम कर सकते हैं, ये सारा सब आपको एक समराइज्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा आफ्टर द केयरफुल स्टडी, एंड यू हैव टू गिव इट इन अ ग्रुप प्रेजेंटेशन। दैट मीन्स इसमें मेंटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपको ग्रुप में डिवाइड करे, और ये जो ग्रुप है ये सारा ग्रुप इसको आप जो काम करेंगे वो टेक्निकल रिपोर्ट फाइनली प्रेजेंट करना पड़ेगा डिजिटाइज फॉर्म में। डेफिनेटली डिजिटाइज फॉर्म में हम लोग प्रेजेंट करेंगे जब आप लोग ये करेंगे। और बाकी जो फैकल्टीज़ का जो ड्यूटीज़ दिया गया है तो उसके बारे में जान के आपका कोई अभी काम नहीं है, लेकिन आप पढ़ सकते हैं उसमें। मैं इवैल्यूएशन स्कीम जो है उसके बारे में बता देता हूँ थोड़ा। इसमें कंटिन्यूस इवैल्यूएशन होगा। स्टूडेंट्स विल मेंटेन अ डायरी ऑफ रेगुलर एक्टिविटीज़ एंड टू बी शेयर्ड विद द मेंटर। दैट मीन्स आप क्या कर रहे हैं हर रोज़, इसके ऊपर जो काम कर रहे हैं, यानी कि सब ग्रुप एक्टिविटी। तो ग्रुप एक्टिविटी के अंदर भी इंडिविजुअली जो रिपोर्ट होगा वो भेजना पड़ेगा आपको मेंटर को, और मेंटर विल हैव अ ट्रैक ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रुप एंड ईच मेंबर। इसका मतलब ये नहीं कि 2-3 समझ लीजिए 6 मेंबर है तो 3 काम कर रहा है या 2 काम कर रहा है, बाकी सब बैठ के आराम कर रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा इंडिविजुअली, यानी कि 6 आदमी लेके एक ग्रुप हुआ है 6 स्टूडेंट्स का, तो 6 स्टूडेंट्स को ही रिपोर्ट भेजना पड़ेगा मेंटर को। सो मेंटर विल डिसाइड कि हर रोज़ रिपोर्ट लेंगे या वीकली रिपोर्ट लेंगे, लेकिन आप जो काम कर रहे हैं उसको एक डायरी मेंटेन, रोज़ अगर हो सके तो रोज़ का एक डायरी मेंटेन कीजिए और उसको फिर एक वीकली रिपोर्ट में कन्वर्ट करके उसको भेजिए। और सेकंड जो है, ये जो टर्म एंड होने वाला है, द मेंटर विल अवार्ड मार्क्स बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट्स इन द ग्रुप एंड ऑन द प्रेजेंटेशन एंड वाइवा। तो ये जो आप जो परफॉर्मेंस देंगे डिजिटाइज फॉर्म में, तो इसके लिए आपको ये प्रेजेंटेशन देना पड़ेगा और उसके लिए वाइवा होगा। अभी यहाँ पे वाइवा जो होगा ग्रुप में भी हो सकता है और इंडिविजुअल भी हो सकता है, लेकिन प्रेजेंटेशन जो होगा वो ग्रुप में ही होगा और पार्ट करके होगा। इसका मतलब है फर्स्ट, जैसे आप कोई प्रेजेंटेशन जब ग्रुप में देते हैं, आपको मालूम ही है, कोई इंट्रोडक्टरी पार्ट बोलेगा, कोई ऑब्जेक्टिव्स बोलेगा, कोई क्या लर्न किए हैं उसके बारे में बोलेगा, कोई रिजल्ट्स के बारे में क्या जनरेट हुआ है उसके बारे में बोलेगा, कोई रिसर्च मेथोलॉजी के बारे में बोलेगा, कोई कंक्लूशन जो है उसके बारे में बोलेगा। ऐसे करके अपने जो लर्न किए हैं उसको आपको बताना पड़ेगा। वाइवा तो इंडिविजुअली हो सकता है, यानी कि 6 मेंबर हो तो 6 में हर एक का वाइवा होगा शायद, या फिर ये हो सकता है 6 को एक साथ जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं वहीं पे वाइवा ले लिया। तो ये गया आपका एग्जामिनेशन पार्ट। इसके अलावा जो डिफरेंट है टॉपिक्स हैं उसमें, जैसे कि मैंने पहले ही जो टॉपिक्स था वो सारा बता दिया आपको, उसका सब टॉपिक्स भी अवेलेबल है। तो आप www.macau.exam.net में जाके इसको देख सकते हैं, या फिर www.wbut.ac.in में जाइए, वहाँ पे भी ये अवेलेबल है। तो ये जो इंटर्नशिप नया वाला आया हुआ है, इसके लिए आपको जो एक फॉर्मेट भी दिया जाएगा, ठीक है। तो कोर्स जो कोऑर्डिनेटर हैं जिसके लिए, यानी कि डिफरेंट टेक्सटाइल एंड अपैरल प्रोडक्शन मैनेजमेंट का भी है, उसका देखिए फ़ोन नंबर जो है उसका, वो डॉक्टर मल्लिका दत्ता, तो उसका फ़ोन नंबर ईमेल आईडी दिया हुआ है। यानी कि जो अगर आपको चाहिए इसको आपको डिटेल्स जानने के लिए, तो आप ये भी उन लोगों को फैब्रिक इंफॉर्मेशन जो है उसके लिए एक वेबसाइट दिया हुआ है, टेक्सटाइल
केमिकल प्रोसेसिंग, इसके बारे में भी बताया गया हुआ है यहाँ पे। सो ये डिटेल्स आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा कितने, क्योंकि इतना सारा अभी यहाँ पे एक छोटा सा वीडियो में हम बता नहीं सकते। तो ये जो है आपका, तो ये आपको देख लेना पड़ेगा थोड़ा सा, तो देख लीजिए, और जो आपको टॉपिक इसके लिए ठीक लगे वो आप टॉपिक इसमें ले लीजिएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसके अलावा बहुत सारा है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो ये जो है ये ड्यूरेशन यहाँ पे सभी में दिया हुआ है, जैसे कि 8 वीक्स का है, ठीक है। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि आपका जो कोर्स है वो कितना वीक का है। हाँ, तो जनरली डिफरेंट है, जैसे कि अगर आप ECE, CSC, IT या फिर AEI और या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऐसा कुछ हो तो उसमें 2 मंथ्स का भी प्रोजेक्ट है। तो ये सब आप देख सकते हैं। उसका जो कोऑर्डिनेटर है, मेन कोऑर्डिनेटर, उसका भी नाम दिया हुआ है यहाँ पे, फ़ोन नंबर, टेलीफोन नंबर, व्हाटएवर इज़, एज वेल एज ईमेल आईडी दिया हुआ है। आपको कुछ पूछना है तो पहले आप अपना कॉलेज के मेंटर से बात कर लीजिए, फिर उसके बाद आप अगर जिस प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड हो उसमें एनरोल कर लीजिए, वो आपको गाइडलाइन दे देगा, ठीक है। तो विद दिस वी कम टू एन एंड टू दिस सेशन, एंड जो इवैल्यूएशन स्कीम तो मैंने बता ही दिया आप लोगों को। तो अगर और कुछ आपको जानना है तो प्लीज़ रेफ़र कीजिए ये वेबसाइट जो दिया हुआ है, ये वेबसाइट में, तो इससे आपको सभी कुछ मिल जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच, एंड आई वुड लाइक टू से thank you to all, and if you like this, please do subscribe my YouTube channel. Thank you very much.